I welcome you all to all the participants. Very good afternoon to all of you. And I welcome our today's guest, Miss Kritika Krishna. And I also welcome all my faculty members. Mr. Sanjay Jain sir, he is the HOI of State Institute of Design. Mr. Shadab Khan, he is the fashion designer. And all my students and respected members. So I'm just sharing the screen of today's talk. So I think you all have been thinking about design your inner space. You all are working for creativity. You all are working for contemplating. You all must be thinking, what is it? So let's see what is it in today's webinar with famous IITian Ms. Kritika Krishna. So let's see what is it actually. Let's first introduce our today's speaker. Kritika, today is her birthday also, first thing. And second thing, Kritika holds a master's degree in chemical engineering from IIT Delhi and a bachelor's degree from BIET Jhansi, but has always been walking unconventional paths. She is an explorer and has education and wellness as her key areas of interest. She loves to dabble with words and voice as a voice artist. She is a writer, poet, and content creator on YouTube. You all can find her link on YouTube too. She is a YouTuber also. She currently works as a facilitator and business developer at CreateNet Learning and volunteers as a meditation trainer with Heartfulness. Heartfulness is all about the meditation NGO, and she creates videos on food, travel, poems, interviews with people, and monologues on important aspects of life. She worked into education sector with NGOs and KFI schools. So now I hand over. I welcome to Kritika Krishna, please. Thank you so much, Shreya, for that lovely introduction, and welcome everybody to this webinar. Shreya, I can handle the screen from here. Okay, I will stop sharing it. Yeah. So now you can handle it. So sure. So I will, till I share the screen, since I am not aware of any of you. If you can just type your name I can see. What are you doing? Which course are you pursuing? And where are you joining us from? So that I get to know you better. Okay, so you know about me, whatever Shreya shared. But now I would like to get to know you better. And if you can switch on your video, that would be awesome, because that will give me a feeling that we are all in one room and this technology barrier can be minimized to a certain extent. Yeah. So till that time, I will share my screen. Okay. And before that, till you do that, I would just like to, play something with you on Menti. So guys, do you know about Mentimeter? Type in a yes or a no on the chat box. This session will be very, very, what do I say, interactive. And the only way of interaction which I can do with you is through the chat box. So please make very good use of the chat box.
and later we can, you know, take in some questions also after this presentation. Yeah. So I'll share with you a link, and we'll do some very quick questions on Menti, so that you know, I get to know the feeling that you are ready for the session. Yeah. Cool. Okay. So everybody, I'm typing in a link over here. Please go to that, and there'll be some questions. You will get to know what you have to do over there. Yeah. So as you will be kind of typing in your answers, I'll be sharing screen from here, and we get to see everybody's answers. Yeah. Okay. So hopefully everybody has got the link, and yeah. So people have started responding, and I'm sharing the screen. Okay. So the first question to you is, how is lockdown treating you? So still we are in that lockdown states wherein uh, there are three options over here. You can actually go on to anything. Yeah, we have just two responses over here. I hope you are getting the responses. आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? Great. So don't go there. Hopeless situation ज़्यादा हो रही है लोगों की, और could be worse थोड़ा सा कम होता जा रहा है. हॉलीडे पे है ऐसा किसी को नहीं लग रहा है क्या? हॉलीडे पे हैं हम लोग, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, अभी मजे करेंगे, ऐसा किसी को नहीं लग रहा है? Okay, so still we have very few responses, and I request Shreya that to post the link again for the participants who have just joined on the chat box again. We have 7 responses, guys. आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करिए इसको, so that we can move on to the next question. Okay, so I think more or less people are feeling that, you know, don't ask me that. Yeah. Okay. Second question to you is, how do you relate to this? So there are some icons on the top right, sorry, bottom right corner, a heart, a question mark, a like or a dislike. जो भी आपको इस पिक्चर को देख के समझ आ रहा हो वो आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा हो इस पिक्चर को देखकर. How do you relate to this? You can press either a heart or a question mark if you don't know what this question, which this is like for you are like you feel related to this, and dislike is like I don't know what is, I don't relate to this at all. Okay. And heart is like I completely relate to this, meaning यही तो हो रहा है आजकल हमारे जीवन में, यही हो रहा है. Yeah. So quickly guys, be a little faster, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अच्छा रहेगा. Yeah. Hopefully everybody has got the link. Somebody is in the waiting room. Okay, more responses, guys. Just click on the link of the chat box, and this question you will get, and just click on any of the icons. Okay, I'm moving on to the next. This is how I am in a class, because I see that most of you are kind of in the are pursuing some of the other course. So I would like you to answer this question. Maybe you will relate to any one of the option. Okay. And don't worry, even if the professors are there, don't worry that you have to press only very alert, because your names will not be displayed. Yeah. So just feel relaxed, and for your own thing. So one person is saying daydream, very alert. How about rest? So I remember that when I was in IIT, I used to relate with the first option. I tried hard to keep my eyes open. Okay, so it was that situation. Oh, कभी-कभी कुछ classes में ऐसा लगता था कैसे ये class खत्म हो. Yeah, but I see most of the students in this group are very alert kind of students. They're very alert in every class, which is a great sign. Yeah. Nobody is responding to almost fall down from my bench, which means that you don't sleep to that extent that you just fall down from your bench. Okay, if there are no more responses, then I'll stop sharing this, guys. Okay, I hope you're enjoying this. If you're enjoying this, then type in the chat box that yes, you are enjoying this. But I don't know why there are very few responses over here. Okay. Okay.
चलिए, I'll stop sharing. Okay, guys, thank you so much for participating in Menti. I hope you enjoyed the tool. And this is one way through which we get to know the participants about their mood, how are they feeling, etc., etc. And I know from Shreya that most of you are design students. Most of you are into either apparel design or product design or some kind of design related field you are involved into. So I would like you to kind of write one language, maybe an English or a Hindi or a mix, because अभी मैं यहाँ पे mix use करने वाली हूँ हिंदी और English का. So whatever language suits you, you can write on the chat box whether I should go completely in English, completely in Hindi, or a mix of English and Hindi is okay for you. So whatever it is, please type in the chat box so that I know which language I have to converse with you. Okay. Okay, so I've started getting some responses. Uh, I hope this both language, I mean, a mix is okay for people. Yeah, so I'll go with that. Okay, guys, I'll just a second. Okay, so the topic for today is designing your inner space. Okay, most of you are related to design field and would relate to this word design. But before we kind of move on to the real session, I would just like to set some ground rules to get ready. There are some points which are written over here. अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप यूज करें जिससे कि आप फोन की नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब ना हो. अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो ट्राई करें कि अभी जो भी हम समय इस दौरान हम सब हैं साथ में, उस समय आप किसी और डिस्ट्रैक्शन पर अपना अटेंशन ना ले जाएं. Please have a notepad open in front of you or a pen, or sorry, notepad, pen or a screen, so that you can really kind of take things from here. आप सब यहाँ से कुछ लेके जाएं, कुछ टेकअवेज हो आपके, कुछ सीख कर जाएं, ये मेरी उम्मीद है. And as I said, please do participate and write on the chat box whatever you are feeling, any kind of thoughts as we move forward in the presentation, so that I get to know that yes, I mean, I am in a real sage setting and not like virtually speaking to you. It becomes challenging at times because you don't get to see people, and so it's requested that please do participate. Avoid privately chatting to each other on Zoom, as this option is anywhere there, because once you feel that the session is getting bored, so we start typing or chatting to one another. I've done that too, but I'll try that this session does not bore you. Okay. एंड जहां पर भी आप बैठे हैं वहां का दरवाजा बंद कर लीजिए, जिससे कि आप एक शांति के एनवायरनमेंट में आ सके. मेरे बैकग्राउंड से कुछ नॉइजेस आपको आ सकती हैं बिकॉज ऑफ द प्लेस वेयर आई स्टे. देयर विल बी सम व्हीकल कमोशन व्हिच विल बी देयर, बट जस्ट keep ignoring that. Yeah. Okay, coming on to space. Okay, what does space mean to you? Please type on the chat box. As I said कि ये इंटरैक्टिव होने वाला है, तो मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा, और जब तक आप आंसर्स नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो प्लीज टाइप ऑन द चैट बॉक्स एज इन व्हाट डज स्पेस मीन टू यू. कैन वी हैव सम रिस्पॉन्सेस? जब हम स्पेस की बात करते हैं तो आपके मन में क्या पिक्चर आ रही है? व्हाट इज इट? आर यू थिंकिंग of the space thing, or are you thinking of the home space, or are you thinking of the office space, or are you thinking of something else? Sanjay ji is saying space is an open form, visible and measurable. Okay. Okay. What else? Any of you, जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, please do participate and write to the chat box as to what does space mean to you. Area to be utilized, Amar is saying. Amarji is saying. Yeah. Shant is saying an opportunity. Okay. Okay. An opportunity to do what? Kritika is saying open space and closed space is what she's perceiving. Okay. Good enough. What else? Okay. So moving forward, and
एम्प्टी एरिया, जानवीर सिंह। हम सब स्पेस की बात करते हैं, जब हम इंटीरियर्स की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कमरे के अंदर का स्पेस कैसा है। जब हम बात करते हैं बाहर के किसी स्पेस को डिजाइन करने की, तो हम वहाँ के स्पेस की बात करते हैं। डिजाइन में स्पेशली स्पेस का बहुत महत्व होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइन। कैसे एक स्पेस को मैनेज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये बहुत मायने रखता है। चाहे आपका कमरा छोटा ही क्यों ना हो, ये इंटीरियर डिजाइनर्स ज्यादा समझ पाएंगे ढंग से। चाहे आपका कमरा छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हमें कैसे चीजों की सेटिंग करनी है, क्या फर्नीचर उसमें रखना है, क्या वॉलपेपर लगाना है, कैसे हम उसमें स्पेस क्रिएट करें। ओके, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेस तो उतना ही है, लेकिन आपने कुछ ऐसे ब्यूटिफिकेशंस कर दिए हैं उस जगह पे कि आपको बड़ा लगने लग रही है वो जगह। ओके, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द आर्टिस्ट, द क्रिएटर, कि वो एक स्पेस को कैसे परसीव कर रहा है, कैसे देख रहा है। Yeah, and so I'll just kind of shift the slide. Yeah. तो हम जब इनर स्पेस की बात करते हैं, तो इनर स्पेस का मतलब क्या है? ये तो हो गया थोड़ा बाहर का स्पेस, लेकिन क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे अंदर का स्पेस। आप सब बहुत क्रिएटिव लोग हैं, बहुत सारी चीजें डिजाइन करते हैं, बहुत सारे उसमें चेंजेस लाते हैं अपनी क्रिएटिविटी से, और क्रिएटिविटी के ऊपर आपका एक सेशन हो भी चुका है। लेकिन जब बात आती है कि बाहर के स्पेस में जो हमें क्रिएटिविटी लानी है, वो भी तो हमारे अंदर से आ रही है ना, राइट? तो अगर वो क्रिएटिविटी हमारे अंदर से आ रही है, तो इनर स्पेस में वो कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे कि हम अपने आउटर स्पेस में जो चीजें हैं उसको ब्यूटिफाई कर सकें। ओके, आउटर स्पेस को अच्छा बनाने के लिए इनर स्पेस में ऐसी क्या चीजें हों जिससे कि हम आउटर स्पेस में उसको मैनिफेस्ट कर सकें। So you get this? Do you get this thinking? If you are getting, if you are with me, type in with you in the comment box. Type in with you in the comment box if you are with me up till now. Yeah. Okay. So इनर स्पेस में अगर हम कुछ चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, अगर आपको अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया है, तो जब हम अपने अंदर रिफ्लेक्ट करते होते हैं, जब आप अपने साथ होते हैं, जब आप किसी चीज को सोच रहे होते हैं, किसी मॉडल को आप सोच रहे हैं, किसी डिजाइन को आप सोच रहे हैं, तो इनमें से तीन चीजें हो सकती हैं। या तो आप थॉट्स में हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, आप फील कर रहे हैं कुछ, आपके इमोशंस हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं है। ये तीन चीजें आपके इनर स्पेस में होती हैं। ओके, अब इनमें से कौन सी चीज आपके दिन भर में, यानी 24 घंटे जब हम वर्क कर रहे होते 24 घंटों में, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ज्यादा डोमिनेंट होती है आपके अंदर? आप प्लीज चैट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिए। आपके इनर स्पेस में थॉट्स, इमोशंस या नन ऑफ दीज में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा डोमिनेंट होती है? प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स। कुछ लोग होते हैं जो सोचते ज्यादा हैं, कुछ लोग होते हैं जो फील ज्यादा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं। ओके, ब्लैंकनेस होती है, नथिंगनेस होती है। Okay, so Prashant is saying thoughts, Niku is saying thoughts, Kritika thoughts, Umesh is saying emotions, Babita is saying thoughts, Saloni is saying thoughts. Very good, guys. Now you have started participating, and I'm really liking this energy over here in the room, okay, in the virtual room. Okay, great, great, say great. So most of you are into the thought zone right now, yeah. थॉट्स में हम होते हैं और उसके बाद कोई चीज हम अंदर से बाहर की तरफ मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है जी, नन ऑफ दीज वाला भी कोई नहीं आया, मतलब अभी हम अपने थॉट्स और इमोशंस में ही अटके हुए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो दिन में ऐसे कुछ जरूर, ऐसे कुछ सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स आते होंगे जब ना तो कोई थॉट होता होगा, ना ही कोई इमोशन होता होगा, और कुछ नहीं है, ऐसी ब्लैंकनेस सी लगती होगी आपको अपने मन में। ऐसी लगती है क्या? If you feel that way sometimes, write sometimes. If you don't feel it at all, write you don't feel that. Okay? तो आज जो हम बात करेंगे कि कैसे अपने इनर स्पेस को इतना व्यवस्थित कर लें, कैसे इतना स्ट्रक्चर्ड कर लें कि हम खुद के थॉट्स को मैनेज कर पाए, खुद के इमोशंस को मैनेज कर पाए,
और उस ब्लैंकनेस को भी इंजॉय कर पाए. Okay? You know what? In a day, on an average day, एक human being के mind में कितने thoughts गुजरते हैं? 60 to 70,000 thoughts in a day, according to a research. और इतने सारे thoughts में गुमराह होना बड़ा लाजमी है. Okay? कहीं पर भी आप फंस सकते हैं. और क्योंकि आप एक क्रिएटिव इंसान है तो इसलिए फोकस बहुत जरूरी है. एक थॉट पे फोकस बहुत जरूरी है, एक फीलिंग पे फोकस बहुत जरूरी है. नहीं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम इधर उधर भागने लगते हैं अपने थॉट्स में. एक मंकी की तरह हमारा मन एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर बस भागता रहता है. और उसी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस लूज हो जाता है, तो हमारे आउटर स्पेस पर भी फर्क पड़ता है. यू अग्री विद दिस? If you agree with what I'm saying right now, type in agree on the chat box. If you don't agree, type in you don't agree. Yeah. तो जब ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि भाई अंदर ना कुछ चल रहा है. You're not feeling at ease. Somehow you have so many ideas, you know what to do exactly, but you are stuck. You are stuck at some point and you don't know what it is. Okay? And it is because हमारा मन focused नहीं है. क्योंकि अगर एक मन फोकस्ड है तो वो बहुत अच्छे से अपने आइडिया को मैनिफेस्ट कर लेता है. You know what? There are so many scientists in the past. There were so many scientists like Einstein, like Thomas Alva Edison. इन्होंने जितनी भी डिस्कवरीज करी हैं, या वो किस बेसिस पे करी? वो इंट्यूशंस के बेसिस पर करी. आपकी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? आई होप आपने इसके बारे में भी क्रिएटिविटी वाले सेशन में बात करी होगी. या तो वो जो नथिंगनेस का स्पेस है, वो जो इंट्यूशन का स्पेस है, वो एक शांत मन से आता है. या वो क्रिएटिविटी वहां से जन्म लेती है जब आप बिल्कुल एकदम शांत होते हैं. वो या तो कोई ऐसा समय होता है जब आप सोकर, मतलब बहुत आपको गहरी नींद आई है, उसके बाद आप जग रहे हैं, तब आपको ये नन ऑफ दीज वाली फीलिंग आ सकती है, जहां पर एक ब्लैंकनेस है और फिर कुछ ऐसा इमर्ज होता है आपके अंदर से, आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है. दैट इज अ वन पॉइंटेड सिंगल फोकस डिसीजन. तो इसलिए हमारा जो इनर स्पेस है, इसमें हमें ये तीन चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे अपने इनर वेलबींग के लिए, अपने इनर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए. और वो तीन चीज हैं अकॉर्डिंग टू मी: पीस, हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट. If you have more things which you see that which can help you beautify your inner space, please type on the chat box. अगर आपको लगता है कि इन तीन चीजों के अलावा भी आपका अंदर का स्पेस कुछ सीख कर रहा है, आपको कुछ और भी चाहिए इसके अलावा, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. और अगर आप इससे अग्री करते हैं तो इन तीन चीजों में से सबसे डोमिनेंट कौन सा ऐसा और ऐसी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी फीलिंग है जो आपके इनर स्पेस में आप डिजायर करते हैं इन योर इनर स्पेस? डू यू डिजायर हैप्पीनेस द मोस्ट, और डू यू डिजायर पीस द मोस्ट, और डू यू डिजायर कंटेंटमेंट द मोस्ट? व्हाट इट इज, टाइप ऑन द चैट बॉक्स. Shant is saying peace, Manjari is saying peace. Okay. पीस ऑफ माइंड कहते हैं ना, सबको चाहिए आजकल. अभी हमने देखा था लॉकडाउन कैसे सबको ट्रीट कर रहा है, और मैक्सिमम लोगों ने बोला कि यार उसके बारे में बात मत करो. तो वो क्या है, वो मन व्याकुल हो रहा है हमारा. अभी हमें लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, कब तक ऐसे कैद खाने में रहेंगे, हमें उड़ना है पंछियों की तरह, हमें निकलना है, बाहर की दुनिया देखनी है हमें, और हमें अपने लोगों से भी मिलना है. तो ये हैप्पीनेस, पीस, ये सब हम सब चाहते हैं. इट्स कॉमन टू एवरी ह्यूमन बीइंग. Okay, if somebody is saying, Nico is saying happiness and peace both. Yeah, nobody is saying contentment over here. किसी को वो नहीं चाहिए, संतुष्टि नहीं चाहिए अपने जीवन में. Yeah, Saloni is saying happiness. So most of you have these goals of happiness and peace. Yeah, हम कहते हैं जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो पूरे दिन के बाद कहते हैं कि you know what, I don't need anything, I just need peace of mind. Can I have some me time? Can I give myself a me time? ये सबकी यर्निंग रहती है, चाहे आप उसके लिए आप अवेयर हो या नहीं. या सो दीज आर द थिंग्स which decorate your inner space. जैसे आप बाहर की स्पेस को डेकोरेट करते हैं ना, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे फ्लावर वास रखा है, और भी चीजें हैं रूम में, right? लेकिन अंदर का स्पेस की ये सारी चीजें बहुत ही इंटेंजिबल है, हम छू नहीं सकते इन्हें, हम बस महसूस कर सकते हैं.
लेकिन अब बात ये आती है कि हम इस इनर स्पेस को मेंटेन क्यों नहीं कर पाते हैं। हम जानते तो है हमारे लिए शांति जरूरी है, खुशी जरूरी है, कंटेंटमेंट जरूरी है, लेकिन why is maintaining our inner space so challenging? Can I have some responses to this question, guys? थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि हम जानते हैं कि हमें खुशी चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन हम अपने इनर स्पेस को मैनेज नहीं कर पाते। हमारे लिए चैलेंज हो जाता है खुश रहना, हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है पीसफुल रहना। Why is it so? Can we have some responses? Okay. Niku is saying sometimes situation is not with us. Okay. हाँ, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जैसे अभी इस परिस्थिति में हम सब हैं, परिस्थितियां हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। ओके, मतलब आउटर चीजों की वजह से हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हम वल्नरेबल हो जाते हैं। More responses, guys. You all are very creative people. Ritika is saying when surrounded by circumstances, yeah, again the same thing. परिस्थितियों की वजह से, बाहर जो चीजें चल रही हैं उसकी वजह से। ठीक है, ओके। Because of numerous thoughts, someone is saying very good. मतलब बहुत अच्छा जवाब है ये भी कि बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। एंजाइटी है, पलक कह रही है। ओके, I would say only one thing. We don't have enough time for ourselves. We don't have time for ourselves, इसलिए ऐसा ये सब हो रहा है। Okay? Do you get this statement? Do you get this statement? We don't have time for ourselves. और यहाँ पे टाइम के पहले मैं एडजेक्टिव लगाना चाहती हूँ, वी डोंट हैव क्वालिटी टाइम फॉर आवरसेल्व्स। मेरे पास हर चीज के लिए समय है, मेरे पास डिजाइनिंग के लिए समय है, मेरे पास यू नो कुछ करने के लिए समय है, मेरे पास बाहर जाने के लिए समय है, लेकिन मेरे पास अपने इनर स्पेस को डेकोरेट करने के लिए समय नहीं है, क्वालिटी समय नहीं, क्योंकि all our attention is diverted towards outward things. हम सबको बचपन से सिखाया नहीं जाता है ना कि अंदर कैसे झांकना है, और हमारी आंखें, our eyes is a big छलावा। okay, how? क्योंकि हम हमेशा बाहर की ओर देखते रहते हैं। हम, हमारी आईज बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि हमें बाहर की दुनिया दिखाती है, कितनी सुंदर दुनिया है, प्रकृति कितनी सुंदर है, बट एट द सेम टाइम बाहर की चीजों में हम इतना उलझ के रह जाते हैं, इतनी सारी चीजों से इफेक्ट होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर्कमस्टांसेस से, परिस्थितियों की वजह से इतना इफेक्ट हो जाते हैं कि हम अपने अंदर, हम अपने साथ 2 मिनट शांति के नहीं बिता पाते। ऐसे देखा जाए तो पीस, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस एक इंसान का बेसिक नेचर होता है, लेकिन फिर भी इसको मैनेज कर पाना इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है। I hope this session is also getting recorded so that you can also see it or refer to it later. If it is not, then I would request Shreya to actually do that. Okay. तो हमारे पास समय नहीं है, अमर कह रहे हैं टाइम इज देयर बट प्रायोरिटी इज समथिंग एल्स। वेरी गुड, या आई कंप्लीटली अग्री विद यू। हमारे पास अपने लिए क्वालिटी समय बिताने के लिए हमें उसकी प्रायोरिटी नहीं है। क्या, चलिए समय दें, उसके पहले हम कुछ वीड्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एक गार्डन होता है ना, गार्डन में क्या होता है, गार्डन में बहुत सारे फूल खिलते हैं, और फूल खिलते हैं लेकिन फूलों में बहुत सारे कीड़े भी लग सकते हैं, और कीड़े लगते हैं तो हमारा गार्डन डिस्टर्ब हो जाता है, वो ब्यूटीफुल नहीं रह जाता है। तो ये जो कुछ बीट्स जो इसमें लिखे हुए हैं, वो हमारे इनर स्पेस को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। जैसे कि स्ट्रेस, फियर, डर, गिल्ट, हर्ट, ईगो, ये सारी चीजें हमारे लिए एक वीड की तरह काम करती हैं। क्या, so can you write some of the other weeds which you feel is disturbing your inner space, which is not letting you be at peace, which is not letting you be happy? अगर आपके मन में इसके अलावा कुछ ऐसे वीड्स हो जो आपके अंदर का इनर स्पेस
डिस्टर्ब करते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। अगर इनमें से आप रिलेट कर पाते हैं तो फिर से मैं पूछूंगी सेम क्वेश्चन कि स्ट्रेस, फियर, गिल्ट, हर्ट और ईगो में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मैक्सिमम टाइम पे डिस्टर्ब करती है या आपके इनर स्पेस को मैक्सिमम टाइम पे डिस्टर्ब कर देती है? प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स व्हाट इज दैट डोमिनेंट वीड विद इन यू, या मैं इसको मॉन्स्टर भी कह सकती हूँ। What is that dominant monster within you which is not letting you be at peace with yourself? Okay, Nico is saying stress. Yeah, more responses, guys. You all have to participate in this, and there is no. This is a safe space. Please feel free to share with honesty. जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, fear, stress. Okay, more responses. ठीक है, फियर स्ट्रेस के बीच में अभी हमारे बाकियों का रिस्पांस नहीं आया, तो मुझे पता नहीं है कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं या आपको कौन सी ऐसा इमोशन डोमिनेंट लगता है। बट अगर आप इसको मेटाफर की तरह लें कि जैसे कि ये इनर मॉन्स्टर्स हैं जो हमारे पीस को डिस्टर्ब करते हैं, वैसे ही आपकी डिजाइन में कौन से ऐसे बीट्स हैं जो आपकी डिजाइन को खराब कर देते हैं। ओके, इट्स वेरी मतलब द इनर एंड द आउटर वर्ल्ड कैन बी कोरिलेटेड to such an extent. I mean, I can see that happening right here, right now. So, ego, somebody saying guilt, yeah. तो ये सारी चीजों को हमें जड़ से उखाड़ना बहुत 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 जरूरी है। क्या ये है एक फियर का पिक्चर जहां पर हम डरते हैं, हमें लगता है कि क्या होगा। बहुत सारी चीजों से लोगों को डर होता है, कुछ लोगों को छिपकली से डर होता है, तो कुछ लोगों को भूत प्रेत से डर लगता है, कुछ लोगों को एग्जाम से डर लगता है, तो कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन से डर लगता है, कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो कुछ लोगों को वीडियो के सामने कैमरा ऑन करने से डर लगता है, कुछ लोगों को चैट बॉक्स में लिखने से डर लगता है कि कोई हमें जज ना कर ले, तो कुछ लोगों को किसी नए इंसान से बात करने में डर लगता है। तो फियर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत डीपली एम्बेड होता है हमारे अंदर और हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। या तो अगर आप सेफ फील करें तो आप अपना डोमिनेंट फियर हमारे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। या और जब तक आप टाइप कर रहे हैं तो एक और मैं बता दूं फियर कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम बहुत बार इसलिए कोई काम नहीं कर पाते हैं या इसलिए कुछ चीजें नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें कैसे परसीव करेंगे, कैसे जज करेंगे। क्या हमें मन तो होता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। So I've started getting some responses: fear of failure, being judged by people, fear of future insecurities, speaking in front of mobile. Yeah, very good. I'm very happy that आप लोग जितने भी लोग regularly participate कर रहे हैं वो सब give a tap on your back because you all are very honest first of all and you all believe that this is a safe space to share. Yeah. तो ये वाला जो है रोग वो किसको किसको है आप अपने चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ये वाला रोग किसको किसको है, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अच्छा, अगर आप रिलेट करते होंगे मैं सोच रही हूँ तो कोई लिखेगा भी नहीं चैट बॉक्स पे क्योंकि उसको ये डर है कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने चैट बॉक्स पे लिख दिया, है ना। तो अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, आप आइडेंटिफाई करिए कि ऐसा है लेकिन इस पे काम करने की जरूरत है। या लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी की परवाह ना करें, हमें जो बोलना है हम वो बोलेंगे। हमें बैलेंस करके चलना है, हमें अपने आप को ठीक तरह से तौलना है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, हम कैसे इन बीट्स को एलिमिनेट करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी जो कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्या आप सुनना चाहेंगे?
अगर हाँ तो टाइप इन स्टोरी इन द कमेंट बॉक्स. Okay. Okay. So some people have started typing story. Great, 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 great. Great. आप लोग स्टोरीज के फैंस हैं लगता है. और हर डिजाइन की शुरुआत एक कहानी से ही होती है. हम सबके जीवन एक कहानी ही तो है, राइट? तो राइट नाउ आई एम सिटिंग इन अयोध्या और मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ. एक्चुअली फैजाबाद, लेकिन अब इसको अयोध्या बोलते हैं. और 10th के बाद आई मूव्ड टू दिल्ली फॉर माय 11th एंड 12th एंड आई वाज देयर इन अ बोर्डिंग स्कूल. मेरे लिए बहुत कल्चरल डिफरेंस था यूपी से जाकर दिल्ली में सेट होना, और फिर पूरी इंडिया से वहां पे बच्चे आते थे. एंड आई वॉज वेरी शाई. आई कुडंट स्पीक, आई कुडंट मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मुझे हमेशा ये लगता था कि लोग मुझे जज कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता था कि अगर आज मैंने किसी से हाय बोला है तो कल दूसरा व्यक्ति भी तो मुझसे हेलो बोले, मैं ही हमेशा क्यों हाय बोलूं. देन आई यूज्ड टू फील दैट कि अगर दो लोग साइड में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं तो वो मेरे बारे में मजाक बना रहे हैं, और अगर हंस रहे हैं तो बिल्कुल भी मुझे कंफर्म हो जाता था कि ऐसा ही कर रहे हैं. लेकिन ये सारी स्टोरीज हो सकती थी मेरे मन की. मुझे नहीं पता कि मैं जो सोचती थी वो कितना सही था. बट दीज वर द थिंग्स आई वाज स्ट्रगलिंग विद. मतलब एक लो अपने बारे में सोचना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, a lot of things which you all have described about the fear of speaking in front of people, getting judged by people, ये सारी चीजें मेरे भी अंदर थी. एंड somehow I used to feel कि मैं कितने निस्सहाय हूँ, लोग मुझे समझते नहीं हैं, आई एम सो सिंपल, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों अत्याचार कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स यूज्ड टू रन इन माय माइंड. लेकिन उससे हुआ क्या? उससे उससे वो लोग तो बदले नहीं, राइट? लेकिन मैंने जब बाद में रियलाइज किया, आफ्टर माय 12th, क्योंकि आई ऑल्सो वेंट थ्रू अ mini very partial depressive phase wherein I was a very very negative thinker, and all these weeds were probably there inside me. And when I started practicing yoga and meditation, धीरे 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 ये weeds जो हैं, ये जो monsters हैं, ये खत्म होते गए मेरे अंदर से. तो मुझे समझ में आया कि यार प्रॉब्लम उनमें नहीं थी, प्रॉब्लम वहां पर नहीं थी जहां पर मैं देख रही थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर ही थी. मैं चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रही थी और अपने मन ही मन स्टोरीज गढ़ती जा रही थी. मतलब एक माइंड जो होता है वो एक पॉजिटिव साइड में क्रिएटिव होता है, जहां पर आप कुछ कंस्ट्रक्ट करने की सोचते हैं. लेकिन वही क्रिएटिव माइंड अगर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लगे तो वो बहुत आपके लिए डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, या दूसरे डायरेक्शन में बहने लगता है मन आपका. तो इसलिए जरूरी है कि एलिमिनेट करना इन बीट्स को जितना जल्दी हो सके, एज सूनर एज पॉसिबल, जिससे कि हमारी जो क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएटिव फोर्स है जो हम सब के अंदर है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना बहे और जिस डायरेक्शन में हम उसको लगाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में वो फ्लो होती रहे. तो बिफोर मूविंग ऑन टू हाउ डू वी एलिमिनेट, आपको स्टोरी कैसी लगी? हाउ डिड यू रिलेट टू दिस स्टोरी? व्हाट डिड यू फील अबाउट इट? इफ यू रिलेटेड टू दिस स्टोरी, टाइप इन रिलेट. या यहाँ पर मैंने एक छोटा सा दो वर्ड्स लिखे हैं कि हम कैसे इनको एलिमिनेट करें. कॉन्शियसली एक्टिंग. ओके, यहाँ पर कॉन्शियसली एक्टिंग का क्या मतलब है? कॉन्शियसली मतलब होशो हवास में एक्ट करना, लेकिन उसके पहले अवेयर होना कि ये सारी चीजें हैं भी. तो यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है. पहले तो ये पता करना है कि भाई कौन सी वीड है मेरे अंदर, कौन सा मॉन्स्टर है जो कि मेरे इनर स्पेस को डिस्टर्ब कर रहा है, और उसके बाद मुझे उसके लिए करना क्या है. तो व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ, एंड इट्स अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट प्रोसेस. यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आज मैं सडनली अवेयर हो जाती हूँ और सडनली मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, कल पूरा मतलब सारी एनर्जी खत्म हो जाती है. इट्स लाइक कि आपने एक दिन तो जिम गए और आपने खूब बॉडी बनाई, मसल बनाई, और उसके बाद 4 दिन बाद आपने जाना छोड़ दिया, या आपने एक दिन सूर्य नमस्कार किया या कोई योगा अभ्यास किया और दूसरे दिन छोड़ दिया. फिर क्या होता है? फिर दर्द होता है, मसल्स में, हड्डियों में दर्द होता है, राइट?
क्योंकि हमने उसको रेगुलर नहीं किया है। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर चेक लगाना, कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना कि हो क्या रहा है, ये कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है और कैसे उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। ठीक है जी, चलिए, आर देयर एनी टेक्निक्स, क्या कुछ टेक्निक्स हैं हमारे पास जिससे कि which can help me in this process? So I would say yes, there are some techniques. As Shreya mentioned that I am also a heartfulness meditation trainer, and we actually offer meditation and relaxation and other techniques free of cost to people. तो हम कुछ टेक्निक्स यहाँ पे मैं आपसे आज एक टेक्निक शेयर करूंगी और उसके बाद अगर आप एग्री करेंगे तो हम थोड़ी देर रिलैक्सेशन भी करेंगे, so that we understand what is the importance of relaxation and meditation in eliminating these beats. But one thing which I would like to share over here कि ये जो fear है, stress है और anger है, इन सारी चीजों से डील करने का एक प्रोसेस जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, that is known as left nostril breathing. So I'm just stopping this share for a while and I'll just show you one demo, one very small demo. हमारी ये जो दो nostrils होती हैं, okay, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग डोमिनेट करती हैं। यानी कि अगर आप अभी अपने नॉस्ट्रल्स को चेक करेंगे इस तरह से, तो आप पाएंगे कि एक नॉस्ट्रल ज्यादा डोमिनेंट है। अभी भी आप चेक कर सकते हैं और प्लीज टाइप करिए ऑन द चैट बॉक्स कि लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा डोमिनेंट है या राइट नॉस्ट्रल ज्यादा डोमिनेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Rutika is saying right, Palak is saying right. और लोग, आई होप सबके पास यहाँ पर नाक तो है ही, सारे लोग इसका तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक करके, राइट? आप सांस ले रहे हैं और आप जिंदा हैं, इसका मतलब आप सांस ले रहे हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज आर राइट एंड द राइट वंस, कांग्रेचुलेशंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दिन के समय जब हम सुबह उठते हैं, जब तक शाम होनी जाती है, तब तक हमारी राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा डोमिनेंट रहती है और जैसे जैसे शाम ढलती है और रात आती है, वैसे वैसे हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा डोमिनेंट होने लगती है। उसका एक साइंस है, आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर ब्रीफली। हमारी राइट नॉस्ट्रिल जुड़ी होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ओके, हमारे शरीर में बहुत सारी नर्व्स होती हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी, है ना, कर्म, एक्शन करना है। और जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है, दैट इज रिलेटेड टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, व्हिच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सेशन, फॉर रेस्ट। तो दिन में हमें ऑब्वियसली ज्यादा ऊर्जा होती है, ज्यादा हम काम कर पाते हैं, और रात होती है सोने के लिए। या तो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, जब वो सुबह उठते थे तो चेक करते थे कि भाई कौन सी ज्यादा डोमिनेंट है। उससे एक चीज और पता लगती थी कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं। और ये राइट लेफ्ट कभी कभी पूरे दिन में कई बार ऑल्टरनेट भी होता रहता है। आई थिंक आई रेड दैट समवेयर, ये जो मैंने आपसे शेयर किया पुराने जमाने वाला चीज क्या। तो उस अभी इस केस में, क्योंकि आपने अभी अभी एक्सपेरिमेंट किया इस चीज के साथ, तो फियर, एंगर और स्ट्रेस जैसी सिचुएशंस में होता क्या है, फिजिकली आपकी सांसें बहुत तेज तेज चलती हैं, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, पल्स रेट बढ़ जाता है, मसल्स टेंस हो जाती हैं। ये सारी चीजें फिजिकल चेंजेस की तरह होती हैं। कोई अचानक से कुछ प्रेशर आ गया आपके ऊपर और फिजिकल ऐसे चेंजेस आपको महसूस होते हैं, तो उस केस में आपकी सांसें भी तेज तेज चलने लगती हैं। इसका मतलब एक्टिविटी बढ़ जाती है आपके अंदर। उसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से डीप ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं डीपली और एक्सहेल करते हैं। कैसे, देखिए, आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से प्रेस करिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से डीपली फ्रॉम योर एब्डोमेन, पेट से बहुत लंबी गहरी सांसें ले और छोड़े, लाइक दिस। ओके, इसको हम अगर 8 से 10 बारी भी कर लेते हैं, तो आपको जो ट्रिगर करने वाली सिचुएशन है ना, उसका इम्पैक्ट आपको धीरे धीरे कम होता या खत्म होता दिखेगा। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर हम अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ट्रिगर हुई सिचुएशंस, आपको डर लगा, स्टेज पे आप जाने वाले हैं, आपको एकदम से नर्वसनेस आ रही है, आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत सारी नर्वसनेस आ रही है, या आपको एक प्रेजेंटेशन देने जाना है, अजीब सा लग रहा है, फियर हो रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं,
या अगर ऐसा हो रहा है, इनफैक्ट इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो, आपको किसी नए से मिलने जाना है, किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है, तो आपको ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप 10 बार 8 से 10 बार लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर लीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको एक सेटलनेस महसूस होगी। आप ट्राई करके देखिएगा आज कल कभी भी जब आप ट्रिगर होंगे सिचुएशन से, एंड कीप अ वेरी जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। अभी भी अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि आप अंदर से थोड़ा थोड़ा सेटल्ड महसूस करना स्टार्ट कर रहे हैं। या जिन लोगों ने अभी अभी मेरे साथ ट्राई किया वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि उनको कैसा लगा। इसको हम राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, सॉरी लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ये थी टेक्निक टू हैंडल फियर, स्ट्रेस एंड एंगर। So this is again a very simple technique which I shared with you. मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रही हूँ लेकिन खैर हो नहीं रहा है। ओके ठीक है, चलिए जी, अब हम आते हैं कि हार्टफुलनेस जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेडिटेशन की मैंने आपसे बात करी। हार्टफुलनेस क्या ऑफर करता है इन इनर बीट्स को हटाने के लिए? ओके, सो some people, some of you may be aware of it, some of you may not be aware of it, so I'll just tell you in brief कि Heartfulness Institute is basically an NGO which provides meditation, relaxation services free of cost. हम जब ध्यान करते हैं तो क्या होता है? Have you ever meditated before? If you have meditated before, type in a yes in the comment box. जिन लोगों ने भी ध्यान किया है वो yes type करें in the comment box so that I know that you know about meditation a bit. मेडिटेशन हमें जनरली लगता है कि हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो मैं तो ध्यान कर नहीं पाऊंगा, मैं तो ध्यान कर नहीं पाऊंगी, बहुत सारे थॉट्स मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं तो फोकस नहीं रह पाता हूँ, मैं तो फोकस नहीं रह पाती हूँ। या जैसे ही मैं ध्यान करने बैठती हूँ वैसे ही बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं मन में। एक्चुअली gives you focus. Focus and concentration are byproducts of meditation. आप ध्यान जब करते हैं तो उसके बाद का जो बाय प्रोडक्ट होता है दैट इज फोकस एंड कंसंट्रेशन। आपको कॉन्सेंट्रेट या फोकस करने की जरूरत नहीं है मेडिटेशन में। ओके, आज भी हम छोटा सा एक छोटा सा एक्सपीरियंस करेंगे 5-10 मिनट का, उसमें आपको पता चलेगा कि इट्स अ वेरी पैसिव प्रोसेस। एंड रिजुवेनेशन, जिसको हम क्लीनिंग भी बोलते हैं, ये बहुत ही सुंदर प्रोसेस है हार्टफुलनेस जो प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपने जो दिन भर का बैगेज होता है ना वो आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बारे में अलग एक स्लाइड है। और प्रेयर, जब आप अपने अंदर से आप सेल्फ से कनेक्टेड महसूस करते हैं। रिजुवेनेशन के ऊपर स्पेशली मैंने इसलिए एक स्लाइड बनाई है, व्हाई? बिकॉज क्लीनिंग का जो प्रोसेस है ये आपको डे टू डे का जो बैगेज है इससे अनलोड करने में मदद करता है। ओके, दिन भर हमने जैसे किसी से बातचीत करी और हम ट्रिगर हो गए, हम इफेक्ट हो गए, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, हम हर्ट हो गए, किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आ गया। ओके, और उसके बाद फिर दिन भर के बाद जब हम अपने साथ होते हैं तो वो सारे थॉट्स, वो सारी फीलिंग्स हमारे मन को क्लाउड कर लेती हैं, जिसकी वजह से हम क्लियरली सोच नहीं पाते हैं। फिर हमारी क्रिएटिविटी भी इफेक्ट होती है। आप जो कुछ डिजाइन करना चाहेंगे, क्रिएट करना चाहेंगे बाहर के स्पेस में, वो हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अंदर का स्पेस इतना क्लटर्ड है, इतना क्लटर्ड है अंदर का स्पेस कि बाहर के स्पेस में डिजाइन क्या करना है उसके लिए सही इंस्पिरेशन नहीं मिल पाती है। या तो इसलिए रिजुवेनेशन टेक्निक हमें इसी चीज में मदद करती है। फिर आप बहुत रिफ्रेश फील करते हैं और आप, अगर कोई सिचुएशन ऐसी हुई है कि ट्रिगर आपको किसी चीज ने किया है, तो सारी आप 5-10 मिनट के लिए स्पॉट क्लीनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इस टेक्निक के बारे में पता है तो प्लीज टाइप इन yes in the comment box. Otherwise, if you would like to experience it over here for 5-10 minutes, we can do it. You want to experience it? Please type in the chat box. Okay, I'm not able to see any responses. और मेडिटेशन आपको हेल्प करता है पॉजिटिविटी, कामनेस और बैलेंस रिस्टोर करने के लिए। रिमेम्बर हमने स्टार्ट किया था वहां से जहाँ पे हम बोल रहे थे कि हमें पीस चाहिए, हमें कामनेस चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन हम उसको
करें कैसे, हमें पता तो है कि हमें चाहिए क्या, लेकिन वो कौन सी टेक्निक्स है जो हमारी मदद करती है। तो मेडिटेशन वो एक टेक्निक है, आपको एनर्जेटिक रखती है, आपको हैप्पी रखती है। ये केवल ये एक इट्स लाइक ब्रशिंग योर टीथ। आपने रोज उस चीज को जब जब आप रोज ब्रश करते हैं तो आप रोज फ्रेश महसूस करते हैं। इसी तरह से जब आप एक बार मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जब रोज उस काम को करते हैं तो आपके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, कैसे आपका इनर स्पेस वो ब्यूटिफाई करने में आपकी मदद करता है। हार्टफुलनेस का एक ऐप है, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, विच इज कॉल्ड हार्ट्स ऐप। ये फ्री डाउनलोडेबल है ऑन योर मोबाइल फोन, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ऑन एंड्रॉइड और iOS। एंड यू कैन फाइंड अ नियरेस्ट मेडिटेशन ट्रेनर, और आजकल तो सब ऑनलाइन है और आप फ्री मेडिटेशन सेशंस का आनंद उठा सकते हैं। हार्ट स्पॉट्स हम ट्रेनर्स को कहते हैं, ओके, और आप नियरेस्ट ट्रेनर भी पता लगा सकते हैं ऐप के माध्यम से। अभी तो सब कुछ वर्चुअली हो रहा है तो नियर फार का कोई मतलब नहीं है। एंड देयर इज अ मैगजीन व्हिच यू कैन रीड टू फीड योर सोल। उसमें भी क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। So thanks for watching. You can find me on these 3 platforms: Facebook, Kritika Krishna, Insta, and YouTube. And if you have any questions related to this topic before we close and before we sit for a 5-minute relaxation thing, I'm very happy to open the floor for some questions. As Shreya mentioned, today is my birthday and I'm releasing some very cool videos today on YouTube as well as Facebook. An interview with a very famous Jaltarang artist. So you may like to watch it today. Yeah. So if there are any questions, please type on the chat box या फिर आप अपने आप को unmute करके भी पूछ सकते हैं. Okay, thank you so much. Okay, so are there any questions, or would you like to do, or would you like to experience relaxation for 5-10 minutes maybe? You can ask questions related to meditation, contemplation, or you can ask what is inner space and whatever. Because inner space relates to your inner space. I mean, how you are going to take one decision in your life. So, if you have any question related to it, our speaker is ready for it. So, if you want to, you can. You just go ahead. There is nothing like I will mind you anything. But if you have any confusion, like many of my students are confused, they are not able to take any decisions. So you can go ahead for that. Yes, sure. Sure, you can either type on the chat box or you can unmute yourself and talk to me. I don't know if you are ready for experiencing a 5-minute relaxation or this something. Okay, guys, how to avoid procrastination is what Janvi is asking. Great question. I think I also suffer from that. This is one of the most बहुत ही गंदा वाला मॉन्स्टर है. हम सोचते तो हैं कि हमें एक टाइम पे कोई काम खत्म करना है, लेकिन हमारे साथ टाल मटोल हो जाता है. कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब. ठीक है, प्रलय तो चली रही है हमारे आसपास एक अलग तरह से, लेकिन फिर भी कैसे हम उसको अवॉइड करें, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत सारे लोग इसे रिलेट करेंगे. तो उसके लिए मुझे लगता है कि प्रायोरिटी जरूरी है, प्रायोरिटाइजिंग जरूरी है और लेजीनेस को त्यागना जरूरी है. प्रोक्रेस्टिनेशन हम कब करते हैं? जब हमें लगता है अरे यार कल कर लेंगे ना, कल हो जाएगा ना, परसों कर लेंगे, परसों हो जाएगा. आज जो मैं वीडियो डालने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो एक्चुअली मैं कितने दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ. आपको पता है 1 महीना से ऊपर हो गया है कि वीडियो एडिटिंग में बहुत समय लगता है और बहुत बड़ी फाइल है, कैसे होगा. अनटिल एंड अनलेस जिसके साथ वो इंटरव्यू था, उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं तुम्हें अभी बनाना है, नहीं तो द मोमेंटम विल गो अवे.
तब मैंने डिसाइड किया एक टाइमलाइन अपने लिए कि मुझे अपने बर्थडे के दिन वो वीडियो डालनी ही डालनी है. देयर इज नो अदर वे आई कैन एस्केप फ्रॉम दिस. और उसके बाद मैंने फिर बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया कि अगर मुझे 29th को डालना है, बल्कि 28th की नाइट को ही लेट्स से प्रीमियर करना है, तो कितने दिन लगेंगे मुझे वो काम करने में और कितने दिन लगेंगे, उसके हिसाब से काम बांट लिया कि मैं रोज के बेसिस पर 1 घंटा 2 घंटा देती रहूंगी या थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी. एग्जैक्टली टाइम ट्रैक नहीं किया और एक दिन तो 4-5 घंटे भी हो गए, क्योंकि मुझे पता है कि एकदम से करना है. और उसके बाद जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो जब आप आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो अर्जेंट बन जाती है. पूरा सेशन मैंने कई जगह पर दिया हुआ है ऑन टाइम मैनेजमेंट. वी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन डू दैट. कुछ टूल्स हैं टाइम मैनेजमेंट के जिसको आप यूज कर सकते हैं, which I also give in that presentation. But right now, to answer your question, Janvi, it's very important to plan and avoid laziness. Yeah. लेजीनेस कैसे अवॉइड होगा? जब आप एनर्जेटिक रहेंगे. एनर्जी कैसे रहेगी? जब आप कुछ अपने शरीर को तो पोषण देने के लिए हम खाना खा ही रहे हैं, पानी पी ही रहे हैं, लेकिन अपने मन को पोषण देने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने सोल को पोषण देने के लिए क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग टू नरिश आवर माइंड एंड सोल? या वो चीजें जब आप करेंगे तो एक क्लैरिटी आएगी. सबसे पहले आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे, क्लटर से बचेंगे, फोकस आएगा. फोकस जब आएगा तो आपको आप अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा काम पहले नंबर पे करना है, कौन सा दूसरे नंबर पे करना है, कौन सा बाद में करना है. और आपके अंदर एनर्जी भी रहेगी तो लेजीनेस खत्म हो जाएगा. जो रिजुविनेशन का मैंने प्रोसेस बताया वो इसी चीज के लिए होता है. आप शाम के आप दिन भर में जो काम करते हैं, शाम को जब आप क्लीनिंग या रिजुविनेशन करते हैं, उसके बाद आप डबल एनर्जेटिक फील करने लगते हैं. आपको लगेगा ही नहीं कि ये पूरी शाम बीत गई है, और आप इक्वल एनर्जी के साथ वो काम को कर पाएंगे. ठीक है. तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, जानवी. I would move on to next question. Palak Khandelwal is asking best time to do meditation. Palak, जो सजेस्ट किया गया है हार्टफुलनेस में, जो बेस्ट टाइम होता है ध्यान के लिए, वो सुबह का समय होता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, जब नाइट मीट्स द डे एंड डे मीट्स द नाइट, जहां पर सबसे कम पोल्यूशन हो रहा होता है थॉट्स का एटमॉस्फेयर में, क्योंकि सब सो रहे होते हैं. तो जब सारे लोग मोस्टली सो रहे होते हैं, तो योगी पुरुष या योगी जो इंसान होता है वो जग रहा होता है, वो ध्यान कर रहा होता है. उस समय का ध्यान की अलग उस समय के ध्यान की क्वालिटी अलग होती है, बिकॉज आपके बाहर की तरफ से बहुत सारा आपको पोल्यूशन नहीं झेलना पड़ता है थॉट्स का जो होता है एटमोस्फेयर में. लेकिन हाँ, अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं और आप करना चाह रहे हैं ध्यान, तो आप कभी भी कर सकते हैं. ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप दोपहर को नहीं कर सकते, आप शाम को नहीं कर सकते हैं. रिकमेंड तो किया गया है सुबह करने के लिए, और आप खुद ट्रैक कर सकते हैं कि सुबह वाले ध्यान में, दोपहर के ध्यान में, शाम के ध्यान में क्या डिफरेंस था, कहाँ पर आपको अपने थॉट्स के साथ कम स्ट्रगल करना पड़ा. जब आप सोकर एक अच्छी नींद के बाद जब आप उठते हैं सुबह, तो आपको कैसा एकदम फ्रेश महसूस होता है ना, क्योंकि उस समय कुछ नहीं होता है, देयर इज नथिंग इन योर हेड. तब का ध्यान बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा. आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपनी कॉन्शियसनेस के साथ. I hope that answers that question. Dia is asking how to take right decision in difficult situations or in many options. अच्छा क्वेश्चन है जिया. बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी कई बार होती है कि दो राहों के बीच में मैं खड़ी हूँ और पता नहीं कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं. और जैसा एक पोएट ने लिखा है कि two roads were diverging in a forest and I don't know, I took the less traveled one. Okay. I think Robert Frost ने लिखा है शायद, if I remember correctly. तो दो नहीं, हमारे सामने तो बहुत मल्टीपल ऑप्शंस भी होते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा राइट डिसीजन है. इसके लिए बोलते हैं कि अपने दिल की सुने. अब आप पूछेंगे दिल की कैसे सुने? दिल तो कुछ बताता नहीं है. दिल तो बस, मैं अगर देख रही हूँ तो बस पंप कर रहा है. इट्स ऑल अ पंपिंग ऑर्गन फॉर मी, राइट? लेकिन हार्टफुलनेस में बोलते हैं कि दिल एक पंपिंग ऑर्गन ही नहीं है, उससे बढ़ के भी बहुत कुछ है. दिल आपको रास्ता दिखाता है, आपको गाइड करता है. चलिए दिल से ना भी आप रिलेट करते हो, आप कहते हो ना गट फीलिंग होती है, कुछ मेरे पेट में कुछ बटरफ्लाई सी हो रही है, कुछ एक गट फीलिंग हो रही है, इंट्यूशन आ रहा है. क्रिएटिविटी में तो बहुत ही ज्यादा आप सब क्रिएटिव लोग हैं, और बहुत बारी कोई थॉट या इमोशन नहीं, एक इंस्पिरेशन होता है, एक इंट्यूशन होता है जिसके बेसिस पर आप एक्ट करने लगते हैं. और जब बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं कह रही हूँ दिल की सुने, तो दिल को सुनने के लिए वो फैकल्टी डेवलप करना जरूरी है जिससे कि हम दिल को क्लियरली सुन पाए. क्योंकि बहुत सारी जो ये चैटरिंग हो रही होती है ना, ये हमारे मन की हो रही होती है.
हमारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं जिसकी वजह से हम एक फोकस्ड अटेंशन नहीं दे पाते हैं, क्लटर चल रहा होता है मन में। अब फिर से थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे, मन का क्लटर दूर करने के लिए क्या करें, तो फिर से मैं आ जाऊंगी कुछ प्रैक्टिस पे। आप कोई भी प्रैक्टिस करें, आप योगा की कोई प्रैक्टिस करें, प्राणायाम उठा लें, हार्टफुलनेस की कोई प्रैक्टिस करें, बट कुछ करें जिससे कि मन का क्लटर दूर हो। जैसे ही मन का क्लटर दूर होगा वैसे ही आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलने लगेगी, और वैसे जो जो हमारी गट फीलिंग है या दिल की आवाज है वो आपको सुनाई तो नहीं देगी कि वो कृतिका लिसन टू दिस, आई एम टॉकिंग दिस टू यू, यू हैव टू प्रेजेंट एट सेज यूनिवर्सिटी टुडे। नो नो, यू विल गेट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ फीलिंग। और कैसे पता चलेगा? कहते हैं कि आप जब कोई सही चीज कर रहे होते हैं तो उसके लिए दिल आपको गाइड नहीं करता, उसके लिए दिल आपको कोई सजेशन नहीं देता, क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल फॉर इट। जैसे आप सांस ले रहे हैं, अभी आज मैंने आपसे पता करवाया कि कौन से नॉस्ट्रल से ज्यादा डोमिनेंट है सांस, लेकिन आज से पहले शायद ही आप में से डोमिनेंट ऐसा भी होता है कि कभी राइट डोमिनेंट होती है, कभी लेफ्ट डोमिनेंट होती है। अवेयरनेस इस केस में जब हम कोई गलत ऑप्शन चूज करने वाले होते हैं ना, तो दिल किसी ना किसी माध्यम से आपको रेस्टलेसनेस होने लगेगी, कुछ अजीब सा लगने लगेगा। यू विल नॉट बी एट पीस, एट ईज विद योर इनर सेल्फ। और तब आप Jia is asking what we do in those situations when your heart says yes for हाँ बोल रहा है। देखिए, थोड़ा सा और डीपर जानने की जरूरत है, तो उसमें फिर से ये जानने की जरूरत है कि माइंड से कौन सी आवाज आ रही है। कभी कभी हमारा मन कुछ बोल रहा होता है, और मन वो बोल रहा होता है जिसको हम कहते हैं कि किया होता है, जो कि सही भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा सही हो। तो एक एक माइंड करना कि कौन सी सच में दिल की आवाज है, उसके लिए आपको एक शांति के स्पेस में जाना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी इनर स्पेस में, वो पीस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, नथिंगनेस क्रिएट करना जरूरी है। यानी कि जो मैंने इनर स्पेस की बात करी थी ना, कि थॉट्स होते हैं या इमोशंस, इसमें तब आपको ज्यादा यहाँ पे समझ में आएगा। एंड आई थिंक दिस वेरी एक्सपीरियंस बैठेगा जी आज रात को, जब आप सोने से पहले, कि आप किसी को वैसे आप प्रेयर करती हो नहीं करती हो, आप किसी सुपर पावर को मानती हो ना मानती हो, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके पूछिए कि यू नो प्लीज गाइड मी फ्रॉम विद इन, कि ये भी है और ये भी है। आप जब सुबह उठेंगी तो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर मिलेगा, या मे बी आप डायरी में लिख सकते हैं कि कौन सा इनमें से ये दो चीजें मेरे दिल में चल रही हैं या मेरे मन में आ रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या, प्लीज शो मी द वे। समटाइम्स गाइडेंस कम्स टू यू इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब कोई व्यक्ति कुछ इंडिकेट कर देगा, कुछ सिग्नल आपको मिल जाएगा, या खुद की ही अंदर की इंस्पिरेशन जग जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आपके साथ ऐसा होगा, प्लीज ट्राई दिस एंड मे बी यू कैन share it with me tomorrow or with Shriya. Yeah. Okay, so are there any more questions? I also invite faculty members if they want to ask any question. You all are most welcome. And Shriya, do we do some relaxation here? Yes, we can go ahead for 5 to A 10. very short relaxation, Yeah. or maybe a rejuvenation technique. I don't know what people prefer. Yeah, ma'am. Yes, hi. मेरा एक क्वेश्चन था जी बताइए शदाब जी। मैम। मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर जो बहुत कुछ चल रहा होता है ना, मैं शांत नहीं रह पाता। तो उसको इस तरीके से कोई ऐसा तरीका हो, मैं योगा भी नहीं करता हूँ, बस सिर्फ मैं ये है कि हाँ थोड़ा जो मेरे नमाज होती है वो जरूर पढ़ता हूँ मैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल 10 दिन का अगर मैं बताऊँ तो 10 दिन का लास्ट का पीरियड ऐसा रहा है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, और वो ही एक टेंशन सी रहती है। और 10 दिन पूरे लगभग मॉर्निंग में 4 to 5 में सोता हूँ, और क्या चल रहा होता है मुझे भी पता नहीं होता, मतलब अजीब सा एक द्वंद चल रहा है अंदर। तो इसको कैसे शांत करूं? ये मतलब आपको कब से हो रहा है? ये लगभग 10 दिन से है ये। आप केवल 1 घंटे के लिए सो रहे हैं सेट?
मुश्किल, हाँ नहीं 2-3 घंटे मुश्किल से सोता हूँ, क्योंकि 8 बजे उठता हूँ और 8:30 का ऑफिस होता है, तो फिर ऑफिस चला जाता हूँ। तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है यहाँ पर। आप हमारे मन या हमारे दिन भर में कैसे थॉट्स चलेंगे, हम शांत रहेंगे या नहीं चलेंगे, ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी हुई है। और अगर आप इतना कम सो रहे हैं, विच डेफिनेटली सीम्स लाइक कि आपको डेफिनेटली अपने स्लीप साइकिल पर इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब ये मुझे नहीं पता कि आपको सोने में दिक्कतें आ रही हैं क्या, मतलब यू आर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज देयर आर सोने सो में कोई मेनी दिक्कत थॉट्स नहीं है। रनिंग। अगर मैं मतलब लेट जाऊँ तो मुश्किल से मुझे आधे घंटे में नींद आ जाएगी। So I think you should increase the number of hours of your sleep. You should take a well rested sleep. मतलब ये 1-2 घंटा नहीं, थोड़ा समय बढ़ाइए अपने सोने का। एटलीस्ट 5 घंटे तो सोना जरूरी है हम सबके शरीरों के लिए। Okay? And I think आप डिफरेंस महसूस करेंगे। आप एक टाइम सेट करिए सोने का, एक टाइम सेट करिए जागने का, और जब हमारी बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि हम नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। सुबह बहुत सारे लोग यहाँ पे रात तक भी देर तक जगते होंगे, जिनको हम नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं। मैं भी कभी कभी रात हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो दिन भर की एनर्जीज रहती है ना, वो बहुत लो हो जाती है, मतलब दूसरा दिन सफर करता है या। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी स्लीप साइकिल को सबसे पहले ठीक करें, अगर हमें ये सारी चीजें अपने इमोशंस और इनर स्पेस को ठीक करना है तो। कोशिश आई करता होप हूँ कि 10 बजे सोने की और 4 बजे उठने की। मतलब सिर्फ मुझे लगता है कि मैं हर रोज मेरी यही कोशिश होती है कि मुझे 10 बजे सोना है और 4 बजे उठना है, और उल्टा हो जाता है कि 4 बजे सोता हूँ और Yeah, I think there needs to be some kind of push also. मतलब एक या तो किसी को आप अकाउंटेबल बना दीजिए कि कोई आपकी इनिशियली हेल्प कर रहा है सोने जगने के लिए, बट धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है इस केस में। Can I contribute something? Sure. Can I speak to Shadab? जी सर। Yeah, I think it all depends on what do you do before you sleep. Before you intend to sleep. Can you hear me? मेरी आवाज तो बहुत बुलंद है। हाँ सर, अब आइए सर, बहुत अच्छी आवाज आई आपकी। Can you hear me? Kritika, can you hear me? Yes. You please go ahead. There is some. Yeah. So Shadab, it all depends on what do you do. What are you doing when before you intend to sleep? You know, if you're doing too much of screen time, too much of digital viewing, your sleeping cycle will get disturbed. Yeah, I agree completely. The best thing to do is to read something in which you're engaging your visual sense in a natural way. You know, just try to read something. Read something which is enjoyable, and then slowly if you are really tired, then you will start feeling sleepy. I have done that experiment enough times. Whenever I'm working on screen, and immediately I just cannot sleep because the entire the circadian rhythm of the body gets disturbed because of the digital light, you know, the non-natural light. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, the blue light, or the digital light, or the what do you call it, the optical light, you know. Yes, that's true. That's very true. In fact, इसका साइंस थोड़ा ऐसा है कि जब आप सोने जाते हैं तो आपके ब्रेन में एक हार्मोन सेक्रीट होता है मेलाटोनिन करके, और मेलाटोनिन सेक्रीट होने के लिए ये जो डिजिटल डिवाइसेस हैं ये ऑपोजिट काम करती है, मतलब दे डिस्टर्ब द सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप जब सोने जाएं तो 1 घंटा या 2 घंटे पहले डिजिटल डिवाइसेस को अपने आप से एकदम दूर कर दीजिए। ओके, हालांकि ये बहुत कम लोगों से हो पाता है। हम सोचते हैं कि ये तो फोन हम केवल आधे घंटे के लिए यूज करेंगे, लेकिन कब वो आधा घंटा 1 घंटा बन जाता है, कब वो 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, हमें खुद को पता नहीं चलता। दैट अवेयरनेस समवेयर काइंड ऑफ गोज। या सो आई थिंक सर सेड अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, एंड आई थिंक आप उस पर चेक लगाइए। और आजकल क्योंकि हम लॉकडाउन स्थिति में है, मतलब जा नहीं सकते बहुत ज्यादा, तो एनीवेज ये जो डिजिटल इंटरेक्शन है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
तो हम बिल्कुल, मतलब मैं तो कहूँगी डिजिटल फास्ट या डिजिटल डिटॉक्स 1-2 घंटा तो खुद के साथ आप करें ही, कि कुछ नहीं है, केवल आप हैं, और जो नेचुरल चीजें, आप बुक्स पढ़ें या आपके घर में गार्डन है वहां जाएं या कुछ भी करें, बट ये जो ये वाली डिवाइस है ना, इससे थोड़ा दूर रहें. Yeah, there is one, and second thing is you should also do some physical activity in the evening. Yes. Walk, get your body tired, so that it starts looking for to rest. Yeah. So Yeah. any sport you can play, or you can just go for a brisk walk or something like that, and maybe take a warm water bath or something before you sleep, and maybe a little warm milk or something. Yes. कहते हैं हल्दी वाला दूध भी बहुत अच्छा काम करता है. Yes. So yeah, it's a combination of diet. It's a combination of diet and exercise and what you are taking in as your mental food. So physical food, mental food, emotional food, spiritual food, ये चारों चीजें मिला के आपको खुद को नरिश करना है. So if there are no more questions, can we sit for a 5-minute relaxation? I'll guide you through it. Yeah. Okay, so please sit comfortably and mute yourselves. 1 minute. Yes. Before starting with relaxation, I request you all to please sit in a place where no one disturbs you, because relaxation is something which you will remember. So please just sit in a very quiet place so that no one disturbs you, and just be relaxed. Over to you, Kritika. Yes, thank you. तो जहाँ पर भी आप हैं या आप कहीं किसी और रूम में शिफ्ट होना चाहते हैं और आप एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं, अगर आपको सीधा, मतलब यू हैव टू कीप योर बैक स्ट्रेट, तो इसलिए अगर उसको रखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सपोर्ट ले लीजिए बैक का. ओके. एंड अभी हम थोड़ा रिलैक्सेशन करेंगे, क्लीनिंग, रिजुविनेशन, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो हार्टफुलनेस की डिटेल्स आपको श्रिया बाद में प्रोवाइड कर देंगी. ओके. सो sit in a very comfortable position and gently close your eyes. I'm assuming that आप लोग बैठ चुके हैं, since I can't see you. अपनी आंखें बंद कर लें और 4 से 5 लंबी गहरी सांसें लें और जाने दें. अपने मन को वर्तमान क्षण में ले आएं. जो भी पास्ट की बातें चल रही हैं आपके मन में, या फ्यूचर की एंजाइटी हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, उससे खुद को लेट गो करें और बस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं. Come on to normal natural breaths. साधारण सांसों पर आ जाएं और धीरे से अपना ध्यान हम अपने अंदर की ओर मोड़ेंगे, अपने इनर स्पेस की ओर मोड़ेंगे. बाहर के स्पेस से सारा ध्यान हटाकर अपने अंदर की स्पेस में अपना ध्यान ले आएं. पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं. पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं और उन्हें रिलैक्स करें मन ही मन. Just relax your fingers completely. इसी तरह पैरों के पंजे और एड़ियों को भी रिलैक्स करें. Feel that the energy from Mother Earth is moving up through your legs and relaxing them completely. महसूस करें कि धरती से ऊर्जा आपके पैरों के जरिए ऊपर की ओर बढ़ रही है और आप रिलैक्स हो रहे हैं. That energy is moving up and relaxing your calf muscles, knees and thighs.
Your legs are completely getting relaxed. Gently move up and relax your hips, the pelvic region. Move up and waist, chest and entire back from the top to the bottom of the spinal cord. Slowly move your attention to your shoulders. अपने कंधों पर अपना ध्यान ले जाएं. Feel that all the worries, stress, tensions, anxieties, fears, all the monsters which disturb your inner space are melting through your shoulders into the atmosphere. Relax your upper arms, elbows, lower arms, palms and fingers up to the fingertips. Completely relax your hands. Gently move your attention to your throat, the neck region, and relax it completely. Move up and relax your chin, lips, jaws, nose, eyes, forehead, ears, and cheeks. Relax your facial muscles deeply. Gently move your attention to the top of the head, the skull region, and relax every bit of it. Scan your body from top of the head to the tips of the toes, tips of the toes to the top of the head. Feel that all the body parts are getting relaxed deeply. Now gently move your attention to your heart, the center of your being. Stay there for a while. Feel the presence of divinity within, the place from which you create, the place from which you get intuitions, place which helps you decorate the outer space. Get in touch with that. If thoughts come, let them come and let them go. Become unmindful of them. Feel the state. Observe whatever is happening to you.
when you feel complete within, whenever you feel complete within, whenever you feel like taking your own time, you can gently open your eyes and maybe write down on the chat box as to how you are feeling, or in your diary, and I'm providing you a link over here. So that you can write your feelings. It's very important for us, for me to know how you are feeling at this point of time. So this is a very small kind of trailer. Relaxation is a trailer to meditation. जिसने अभी तक नहीं सीखा है meditate करना या rejuvenation करना, तो वो जरूर सीखिए. श्रेया से आप हेल्प ले सकते हैं. She also meditates. Yeah. And you're feeling relaxed. That is good to know. I'm sharing with you a link so that I know that how are people feeling in the room. This is again on Menti. I'm pasting the link on the chat box. Please go to that link, and there is just one question which you have to fill in. How are you feeling right now? There are 3 keywords or 3 words which you have to type in. तो मैं यहाँ से शेयर कर रही हूँ, एंड आप इस लिंक पे क्लिक करिए और 3 फीलिंग्स शब्दों में आप बता सकते हैं. ठीक है? I'm sharing the screen from here. Let's see what is the feeling of the room. Hope you are getting. How are you feeling? So as you click on the link, आपको 3 शब्द टाइप करने होंगे. वैसे वैसे यहाँ पर फीलिंग्स आ जाएंगी. Chill, relaxed, calm, or more responses, guys. आप सब लोग, I would urge you to actually click on Mentimeter. Anyways, it does not ask you for your name, so it won't matter. आपका नाम नहीं पूछेगा वो. यहाँ पे सब anonymously होगा. Hope you are doing it. Full, chill, relaxed. Okay. Please be here till the end of the session. मैं कुछ links आपको कुछ resources भी share करूँगी. So please be here till the end. Free from headache. Wow. Thinking of myself. Eliminate anxiety. Sleepy. ज़्यादा जो relax हो गए उनको नींद आ रही होगी अभी. आप उसके बाद सो जाइएगा जाके थोड़ी देर. Chill, calm, eliminates anxiety. Okay. We've got 6 responses and we have 18 participants. Guys, थोड़ा तो जल्दी जल्दी type करिए responses. Okay. Like you are in the another world. Okay. कि आप दूसरे जहान में हैं ऐसा लग रहा है. Okay. So I'm waiting here for maybe another minute till some more people kind of type in their responses. You know what, Menti is a very cool tool which I found. I'm sure अगर आप लोग भी इसको यूज करेंगे बहुत अच्छा रहता है virtually ऐसी meetings conduct करने के लिए, so that you know how are you feeling, because I can't see you
You can just talk to me on chat, and these ways just help you further. Yeah. Okay, so if there are no more responses, I'm closing it. Yes, I can share the YouTube का channel link. I'm just sharing with you. अभी 3 बजे एक वीडियो उसमें से प्रीमियर हुआ भी है, आप जाके देखिएगा. लेकिन मैं I'm just sharing the link of the channel. It is with the name of Kritika Krishna. ये है मेरा channel का link. और this is my channel's link. The place where I'm working right now, CreateNet Learning, we also offer some programs for designing your inner space. You know, it helps you more into reflection, thoda sochna, thoda sa silence mein jana, and it's a very good program for anybody who would like to know more about themselves, their strengths, what are their areas of development, how do they learn, how do they apply their competencies in work, what kind of work you choose. So I'm just sharing the link of the website. We are doing some experience sessions every weekend actually, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी अभी तक मैंने आपसे शेयर किया है, createnet.co/CLP पे जाके आप पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में. तो उसके लिए अगर आप आना चाहेंगे कुछ सेशंस में, so Shreya can maybe share the link with you later, you know, on the WhatsApp group, or you can write to me at kritika@createnet.co. या आप इस पे मुझे लिख भी सकते हैं और मेरा नंबर भी यहाँ पे ले सकते हैं. If you have any such questions further, so you can contact me over here. And if you are there on Insta, so you can find me on kritika.krishna on Instagram, and it's there with the same name on Facebook also, Kritika Krishna ke naam se. Other than that, I think I have nothing else to share. But you can let me know if you get something out of this createnet.co/CLP wala program. If you want to kind of know more about it, you can get in touch with me later. Drishti is asking how meditation helps in finding our inner space. Drishti, inner space तो है ही, और find नहीं करना है उसको. inner space में से जो weeds है ना, जो जिनके बारे में हमने बात करी, जो monsters हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनको eliminate करना है. तो meditation से क्या होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है. ओके, आप जैसे हम बोलते हैं ना कि थॉट्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मैं एक थॉट पे कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेडिटेशन करने से आपको फोकस, अटेंशन मिलता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलता है. तो जब आपके पास फोकस, अटेंशन होगा, रेजर शार्प आपका माइंड हो जाएगा, आपके माइंड की कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो बहुत सारे अन्य विचार हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे. आपको पता रहेगा कि आपको कौन से समय किस थॉट पे फोकस करना है, और जब आप जिस थॉट पे आप फोकस करेंगे वो आपकी रियलिटी बनता जाएगा, क्योंकि उसी थॉट पे आप एक्ट करेंगे और वही आपकी डेस्टिनी बनता जाएगा. तो एक तरीके से यहाँ पे हम एक और चीज कर रहे हैं, बाय द वे, हम अपना इनर स्पेस डिजाइन करके अपनी डेस्टिनी को भी डिजाइन कर रहे हैं. ओके, डू यू एग्री विद दिस? देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड डिजाइन योर डेस्टिनी, which is written by Kamlesh G. Patel, who is the global guide of heartfulness, and beautiful book for anybody, any starter, any beginner. बहुत ही scientific तरीके से उन्होंने इन चीजों के बारे में लिखा है. Maybe Shreya can share more about it later. Okay guys, I hope you had a very good session today. If you have any feedback, suggestions for me, if you feel that हम इस session को और better plan कर सकते हैं, or if you want to suggest maybe some more topics for future, maybe we can schedule some more sessions in the future, तो आप chat box में लिख सकते हैं. I would like to thank Sanjay sir if he's here, and all the faculty members of Sage College. I like this name, Sage. Okay, it anyways has some kind of purity in it, क्योंकि साधु sage जब मैं imagine करती हूँ तो बहुत pure सा लगता है, और इसलिए आप सब सेजेस को मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है. And I really enjoyed this session. I hope you enjoyed it too. Well, thank you so much, Kritika and Shreya. Sir, I would like to actually share that
that image which Kritika was talking about. Image. 1 minute, sir. 1 minute. I'm just sharing. This book she was talking about, it's like designing destiny. It's a heartfulness way. Where in this it has been talked about your fear, about your what things मतलब कौन सी चीजें आपको रोकती हैं, आपके फियर, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना चाहिए. और अगर आपको स्लीपिंग पैटर्न्स में दिक्कत हो रही है तो स्लीप के ऊपर इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है. एंड द वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट मेडिटेशन एंड ऑल. So it's available in Amazon. So you all can go through and just buy it. And I'm stopping. Yeah. Also, I would like to share those of you who would like to really learn meditation. One is HeartSap, definitely. But we on Heartfulness Hindi platform, we do regular meditations every day from 7 to 7:30 in the morning. So if you want to attend any of those sessions, and we take up different topics, like today I took up a topic of ego. Is ego good or bad? तो इस तरह से हम डिफरेंट टॉपिक्स ले सकते हैं. हम यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं. Shreya can provide the details later with you about the channel links of Heartfulness, whatever the resources are. They all are available free of cost. Yeah. Thank you. Everybody was wishing me birthday. Thank you. Thank you so much. Yeah. And Shreya, we have to. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We close? Yeah, there is some certificate of your participation. Okay. Thank you. I can give you that. Should I share? Yeah, you want me to give it? Yes, sir. Okay. So are you sharing this? Yes, Kritika, this is for you. Thank you. I sent it to you by email. Yeah, so you can take a print, keep it with you. Sure. Thank you so much for this. And hopefully we can connect up again in the future. Sure, sir. Sure. Would love to. Bye. Take care. Bye. Thank you so much. Thank you, everybody. Thanks. Bye. Last thing, I have shared the WhatsApp link. If you all want to join that group, you can just click on that link and you will join that group. Okay. And also share the feedback form also. Yeah, sure. The feedback would be useful. Yeah. Okay, so I am ending the meeting now. Thank you all for joining today. Okay. Thanks, Shreya. Yeah. Thank you, Sanjay sir. Happy Thank you, birthday. everybody. Thanks. Yeah. Bye.